وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 29واں اجلاس 171 ایجنڈا نکات پر غور کیا گیا۔ پنجاب میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب کو صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے متاثرین کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو، ریلیف اور امدادی پروگرام منظور کر لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے جائیں گے۔ منظور شدہ پیکج کے تحت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ، مستقل معذوری پر 5 لاکھ، معمولی معذوری پر 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پکے گھر کے مکمل انہدام پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 3 لاکھ، کچے گھر کے مکمل گرنے پر 5 لاکھ اور جزوی نقصان پر 1.5 لاکھ معاوضہ دیا جائے گا۔ بڑے مویشی پر 5 لاکھ اور چھوٹے جانور کے مرنے پر 50,000، 25% فصل متاثر ہونے پر کاشتکاروں کو فی ایکڑ 20,000 روپے امداد دی جائے گی۔ صوبائی کابینہ نے 2,855 مواضعات میں آبیانہ اور ایگریکلچر انکم ٹیکس معاف کرنے کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ نے سول ڈیفنس رضاکاروں کی تنخواہوں میں 15,000 ماہانہ اضافے کا اعلان کیا۔ کابینہ نے 8,084 کالج اور سکول ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی منظوری بھی دے دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 29واں اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں 171 ایجنڈا نکات پر غور کیا گیا۔ ایک طرف سیلابی مشکلات اپنی جگہ پر، دوسری طرف بارش کے نئے سلسلے نے سیلاب متاثرین کو الرٹ کر دیا۔ ٹپی راجن کے خیموں میں طوفانی بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ 100 کیمپس میں 700 بچے، خواتین اور بزرگ رہائش پذیر ہیں۔ متاثرین پریشان۔ کبیر والا میں بھی سیلابی علاقوں کے مکینوں پر گزشتہ شب ہونے والی بارش کھلے آسمان تلے برسی۔ موسمی سختیوں کے باعث متاثرہ علاقوں میں بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا۔ متاثرین کا کہنا تھا سیلاب سے ہمارے مکانات گر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اہل خانہ کو بارش ٹھنڈ سے بچانے کے لیے درختوں کے نیچے پناہ لی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بارشوں کے نئے سلسلے نے سیلاب متاثرین کو الرٹ کر دیا۔ پپلی راجن کے خیموں میں طوفانی بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ 100 کیمپس میں 700 بچے، خواتین اور بزرگ رہائش پذیر ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان اور ایم ڈی واسا کا شہر کا دورہ۔ 161 ملی میٹر بارش کا بڑا سپیل، سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ڈی سی کا نکاسیاب کا جائزہ۔ ایم ڈی واسا کی رین ایمرجنسی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ۔ ایم ڈی واسا خالد رضا خان کا کہنا ہے کہ فوری نکاسیاب کے لیے واسا ٹیمز رات سے فیلڈ میں موجود ہیں۔ آج رات تک تمام رین ایمرجنسی آپریشن مکمل کر لیا جائے گا۔ گوہر ہمان شیخ سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھر میں جو ہے رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور وقفے سے ملتان میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اور اس دوران 2 بڑے سپیل جو ہیں وہ بارش کے حوالے سے دیکھنے میں آئے ہیں۔ اور اس میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ واسا کے حوالے سے، واسا کی جانب سے جو رین گیجز لگائے گئے ہیں ان کی جانب سے جو اب تک کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے، یہ سال 2025 کی سب سے زیادہ بارش اب تک ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ جو سب سے زیادہ جو ملتان کا کڑی جمندہ ڈسپوزل ہے، وہاں پر 161 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس سے سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقے دکھائی دیتے ہیں ان میں ملتان کا علاقہ ممتاز آباد، اس کے علاوہ دہلی گیٹ، دولت گیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چنگی نمبر 14 اور اطراف کے جو علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت بارش سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں پر نکاسی آب کے مسائل بھی دیکھنے میں آئے۔ واسا کی ٹیم میں الرٹ بھی دکھائی دی۔ ایسے میں ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حمید سندھو کی جانب سے شہر بھر کا دورہ کیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا اور واسا کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی جانب سے نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ شہریوں سے جو بارش کے پانی کے باعث مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان سے اس بارے بھی استفسار کیا گیا ہے۔ اور فوری طور پر واسا کی ٹیموں کو شہر میں جو رین ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اس کے حوالے سے تمام تر جو شاہراہیں ہیں، گلی محلے ہیں، انہیں کلیئر کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس موقع کے اوپر ایم ڈی واسا کا یہی کہنا تھا کہ رین ایمرجنسی واسا میں نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام سٹاف کی چھٹیاں بھی منسوخ ہیں اور اس حوالے سے رات گئے سے ہی تمام واسا کی ٹیمیں ہیں اس وقت فیلڈ میں دکھائی دیتی ہیں۔ گوہر ہمان شیخ، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ مظفر گڑھ میں گزشتہ رات کی طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ بارش کے بعد سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ بڑھ گیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے گاؤں تراب والا میں سیلاب متاثرین گزشتہ 1 ماہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سروے جلد سے جلد مکمل کر کے ہماری مدد کی جائے۔
भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। गांव तुराबवाला के सैकड़ों सैलाब मुतासरीन अभी भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। गुज़श्ता रात होने वाली तेज बारिश के बाद उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। सारी रात तूफान की जद में गुजरी, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि सर्वे टीम्स फील्ड में मौजूद है, मगर उसमें बहुत वक्त लग रहा है। सर्दी से मुतादिद मौसमी अमराज फैलने का भी खतरा है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। हुकूमत जल्द से जल्द उनको साइबान मुहैया करे। पानी इतना 14 जी कहनी है जरा होना है, जरा यूं फेरी है 14 जी कहना है, 14 घट है पानी। मकसद है हुण ये कमरे ढह गए, ई पासे ये ढह गए, ये कमरे डटे पे पानी काफी है, ये दरख्त ये ढह गए। मुतासरीन का कहना है कि बारिशों के बाद नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बेट के इलाकों में जल्द से जल्द मदद फ्राहम की जाए और लोगों के मकानात तामीर करवाए जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने मौसम सरमा की आमद का बाकायदा ऐलान कर दिया है। शरीफ, अहमदपुर, लम्मा, छपकला, बुरेवाला, सरगोदा, शाहपुर, गढ़ामोर, मैक्लोडगंज और कुंदिया समेत मुतादिद शहरों में तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में होने वाली तूफानी बारिश ने रवां साल का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कीड़ी जुमंदा डिस्पोजल स्टेशन पर 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि चुंगी नंबर 9 पर 79, सामिजाबाद पर 69, खान विलेज पर 53, सूरज मियावालनी पर 37 और पुराना शुजाबाद रोड पर 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मुमताजाबाद, BCG चौक और कच्ची आबादी अंडरपास समेत मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। जनूबी पंजाब में खवातीन के लिए एक बड़ी सहूलत फ्राहम कर दी गई। डायरेक्टर जनरल नौदरा मुल्तान रीजन ने DG खान ने खवातीन के लिए मखसूस पहला वीमेन नौदरा रजिस्ट्रेशन सेंटर इफ्तिताह कर दिया। नादर हुकाम का कहना है कि ये इकदाम खवातीन के बाख्तियार होने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, जनूबी पंजाब में ख्वातीन के लिए नादरा की तरफ से एक अहम सहूलत फराहम कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल नादरा मुल्तान रीजन ने आज ख्वातीन के लिए मखसूस पहला नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। DG खान की आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत दी गई है। ख्वातीन के लिए ये सेंटर ख्वातीन को एक महफूज, बाइज्जत और आरामदेह माहौल मुहैया करेगा, जहां वो बिला झिझक अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवा सकेंगी या उनमें दुरुस्तगी वगैरह करवानी हो तो वो भी करवा सकेंगी। नादरा की इस इक़दाम को ख्वातीन के बाख्तियार होने की सिमत एक नुमाया पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सेंटर मॉल ऑफ दी DG खान गार्डन टाउन मुल्तान रोड पर जो है वो कायम किया गया है, जहां अमला भी ख्वातीन पर मुश्तमिल होगा ताकि सहूलत और एतमाद दोनों फराहम किए जा सकें। बात करें कौन से इलाके जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, कस्बा वडोर, कस्बा समीना, शहजाद कॉलोनी, सरूर वाली, इस तरह दीगर कई मौज़ूजात हैं जहाँ की ख्वातीन जो है वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगी। जबकि ख्वातीन समाजी हलकों का कहना है कि ये इक़दाम न सिर्फ शनाख्ती सहूलियात तक रसाई आसान बनाएगा बल्कि ख्वातीन को कौमी धारे में फ़ाल किरदार अदा करने का भी मौका फराहम करेगा। आज इस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। जी, आज इस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। शकील सुल्तान, अपडेट करने का शुक्रिया। टेक्सटाइल सेक्टर बहरान पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का तशवीश का इजहार। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का हुकूमत से फौरी इस्लाहात का मुतालबा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियाँ बख्तावर शेख का कहना था कि मुल्की मईशत की हड्डी समझी जाने वाली सनत तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। हुकूमत फौरी तौर पर जामे हिकमत अमली अपनाए, नहीं तो मजीद सनती यूनिट्स बंद होंगे। सैयद ज़ुहैब बुखारी सवाले से तफसीलन आगाह करेंगे। आज बिल्कुल ताजी बरादरी है, जो सनती बरादरी है उनकी जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर पर जो है वो सनती बरादरी बहरान पर जो है वो काफी तशवीश का इजहार कर रही है। तो ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी तशवीश का इजहार किया है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियाँ बख्तावर तनवीर शेख ने जो है वो हुकूमत से फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली सनत इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से जो है वो गुजर रही है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर जामे हिकमत अमली ना अपनाई तो न सिर्फ मजीद सनती यूनिट्स बंद होंगे बल्कि और भी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। लाखों अफराद बेरोजगार और बरामदी आमदन में अरबों डॉलर की कमी जो है वो वाकई जो है वो हो सकती है। मियाँ बख्तावर शेख ने मजीद कहा कि सबसे पहले जो बिजली है उसकी कीमतों को खित्ते के दीगर बरामदी ममालिक के बराबर जो है वो लाया जाए। हमारी सनतें आलमी मंडी में मुसाबकत है
वो बरकरार रख सके। उसके साथ उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम को हाल किया जाए। मियां बख्तावत शेख ने यह भी मुतालबा किया कि हुकूमत को निजी शोबे के साथ मिलकर जो है वो पॉलिसी साजी जो है वो करनी चाहिए। तो ये चैम्बर की जाने से जो है वो तशवीश के साथ इस हवाले से। ज़ुहैब अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान शहर में मॉडल रोड्स का मंसूबा अमलन ठप। शहरियों को जदीद ट्रैफिक निज़ाम फ्राहम करने के लिए मॉडल रोड्स का मंसूबा शुरू किया गया था, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ये मंसूबा ताहाल मुअस्सिर साबित नहीं हो सका। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मंसूबा फाइल्स तक महदूद नजर आता है। मुल्तान शहर में मॉडल रोड्स का मंसूबा इंतजामियों की तवज्जो का मुंतजिर। शहरी सहूलत के नाम पर शुरू मंसूबा अमल दरामद न होने के बाद सिर्फ फाइलों तक ही महदूद रह गया। कसवर गर्देजी रोड समेत शहर की कई अहम शराहों को मॉडल रोड्स का दर्जा दिया गया, मगर जमीनी हकाइक कुछ और ही बताते हैं। शहर के मॉडल रोड्स पर तजावजात, गैर मुनज़्ज़म पार्किंग और नाकिस यूटर्स प्लानिंग ने मंसूबा का मकसद ही खत्म कर दिया है। नाज़रीन, मुल्तान में सरकारी स्कूल के बेशतर तलबा अब तक किताबों से महरूम। किताबें न मिलने से असातिज़ा और तलबा दोनों ही परेशान हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की मुबैना नाअहली। मुल्तान में सरकारी स्कूलों के तलबा को अब तक किताबें फ्राहम ना की जा सकी। तालीमी साल खत्म होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं, मगर तलबा अब भी किताबों के इंतजार में हैं। अब तक प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को 40%, जबकि हाई सेक्शन के तलबा को 20% किताबें ही फ्राहम की जा सकी हैं। गूगल से हम सर्च करते हैं और उसके मुताबिक जो है फिर बच्चों को नोट्स तैयार करवाते हैं और बच्चों को करवाते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से और हुकूमत से यही गुजारिश है कि अगर सिलेबस चेंज किया है तो टाइमली जो है वो हमारे स्कूल के बच्चों को जो है वो बुक्स मिल जानी चाहिए थी। अब आप देखें कि मार्च में इनका एग्ज़ाम है, तो उसके हवाले से इन्होंने अपनी तैयारी करनी है। तो तमाम टीचर्स अपने जो सिलेबस को है वो नोट्स बना के बच्चों को जो है वो उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तालिबात का कहना है कि वो पुरानी किताबों से और नोटिस बनाकर पढ़ने पर मजबूर हैं। वालिदैन और असातिज़ा दोनों ही कुतब की कमी से पैदा होने वाले तालीमी मसाइल पर परेशान दिखाई देते हैं। हमारे पेपर्स मार्च में हैं और हमें जो है किताबें फ्राहम नहीं की जा रही हैं। हमें पेपर्स आगे हमारे पेपर्स हैं, हमें तैयारी करने में भी मुश्किल होती है। हमारी टीचर्स हैं वो हमें नोट्स बनवाती हैं तो उसमें भी हमें मुश्किल होती है। आगे हमने होमवर्क्स वगैरह करने होते तो उसमें भी हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। अक्सर तो बुक्स वगैरह फटी हुई होती हैं जिनसे हमें ज़्यादातर मुश्किल होती है क्योंकि वो पुरानी होती हैं। और फिर अगर नोट्स वगैरह घर में हो तो फिर थोड़े से बच्चों के पास होते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो बना नहीं सकते, तो इस तरह से हमें शेयर करने में भी थोड़ा सा मतलब काम करने में भी तंगी होती है। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि किताबों की कमी के बायस निसाब मुकम्मल कराना मुश्किल हो रहा है और तलबा की तालीमी कारकर्दगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कैमरामैन फ़हीम के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। आपको अपडेट करें कि मियांवाली म्यूनसिपल कमेटी और पैराफोर्स की कार्रवाई। रेलवे मार्केट को सील कर दिया गया। दुकानदार पैराफोर्स की कार्रवाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। दुकानदारों का कहना था चंद दुकानों के बाहर सामान पड़ा था, पूरी मार्केट को सील कर दिया है। पूरी मार्केट को सील करना सरासर जुल्म है। पैराफोर्स कार्रवाई करे मगर बेकसूरों के साथ ज्यादती ना करे, उनका मजीद कहना था। नोटिस लिए बगैर कार्रवाई की गई है। दूसरी जानिब एमसी और पैराफोर्स के अफसरान का कहना है कि दुकानदारों ने फुटपाथ पर सामान रखा हुआ था। दुकानदारों को डीसी से नोटिस लेने का मुतालबा। शुगर मिल्स मालिकान और किसानों के अरबों रुपए खुर्द बुर्द केस में गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम राशिद महमूद को अदालत की ड्यूटी हुमैरतुल ज़हरा ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मंजूर किया। सप्लाई के दौरान 1 अरब 83 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद खुर्द बुर्द का मुकदमा दर्ज है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अदालत की ड्यूटी जज हुमैरतुल ज़हरा ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। मुलजिम पर गन्ने की सप्लाई के दौरान 1 अरब 83 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद खुर्द बुर्द का मुकदमा दर्ज है। कि सैलाब की सूरत हाल बेहतर होने के बाद लोग घरों की तामीर और मुरम्मत दोबारा करने लगे, मगर शहर में मूसलाधार बारिशों ने शहरियों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। उन अब्बास इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सैलाब के बाद जो है अब बारिशों के बाइस सैलाब ज़दगान को बेहद मुश्किलात का सामना है। सैलाब के बाद जो है लोग अपने घरों को तो वापस आने लगे हैं, मगर घर की तामीर और मुरम्मत के साथ साथ जो उन्हें सबसे ज़्यादा दरपेश मसाइल हैं वो कुदरती आफत जो आई थी सैलाब की, उसके बाद अब बारिशें आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो अपना घर तामीर कर रहे हैं दोबारा से, तो उनका घर जो है दोबारा से गिर रहा है। इस हवाले से हमारे साथ जो है यहाँ पर सैलाब ज़दगान मौजूद है। कितने मसाइल का सामना, कितने मुश्किलात का सामना? भैया हमें बहुत मसला ज्यादा औखा है क्योंकि रात बारिश है तो सारे ना ज्यादा मसला औखा थी गया। सारे माल शाली भी पोस गए, सारे बाल भी कशा कहनी बच्ची सामान पोस गया। घर बने दे प्यासे दीवारें ढा गए दोबारा
कच्चे घर हैं सारे सरकारी जगह है, सारी आप दी जमीन का नहीं है, सब बहुत गरीब लोग इसे कच्चे घर सरकारी जगह बने बैठे आसे ओ भी उठाए गए सारे घर पहले फ्लड की वजह तो उठाए गए हुण बारिश की वजह तो उठाए गए सारी हुण इतनी तौफीक का नहीं है दोबारा घर बना गए। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत के सारी इतना ही है कि अगर वो सारी तरस कर सकते हैं तो वो सारी कोई इमदाद भी कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई तरस है असा गरीब है ना तो वो सारे नाल तावन कर सकते हैं। हमारे साथ जो है शहरी मौजूद हैं यहाँ पर। बाबा जी ये दसो कि आयो दोबारा वापस ते कितनी मुश्किलात दा सामना है, बारिश दा मौसम है ते कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है भाई, साढ़े सारी रात बाल से गए। बच्चों को भी देख सकते हैं कि सर्दी है, शदीद सर्दी, और आप देखें बच्चे जो है सारे यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं पहना हुआ, और अभी यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी है क्योंकि सामने ही दरिया है। अब बारिश आने के बाद काफी ज्यादा मौसम जो है यहाँ पर सर्द हो चुका है, और आप बच्चों को देखें तो पाँव में चप्पल भी नहीं है, और इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पर आप बच्चों को देखें तो उन्होंने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि हम दोबारा अपने घरों में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, इस हवाले से जो है हमारे साथ ताउन किया जाए, हमारी इमदाद की जाए, क्योंकि ऑन अपडेट करने का शुक्रिया। बारिश ने सैलाब मुतासरीन की जिंदगी अजीरन बना दी। मुबारकपुर में बारिश का पानी खैमों में दाखिल हो गया, मुतासरीन परेशान। उधर कबीरवाला में सैलाबी इलाकों के मकीन खुले आसमान तले बारिश बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। मुबारकपुर में बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। पिपली राजन में तूफानी बारिश का पानी खैमों में दाखिल हो गया। 100 कैंपों में 700 बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग रिहाइश पजीर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी निकासी आब का मुतालबा कर दिया। उधर कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों के मसाइल खत्म न हो सके। सैलाबी इलाकों के मकीन गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से शदीद परेशान। मौसमी सख्तियों के बायस मुतासरा इलाकों में बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। मुतासरा खातून परवीन बीबी का कहना था कि सैलाब से उनके मकानात गिर गए, अब खुले आसमान तले बारिश बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। असां करे सां बेग सारे कोल फलाडा है, 4 दीवारें ढह पे मकान हुन असां रात बहु मुश्किल रात गुजारी है। भाई बारिश आई सारे बच्चे ने सिर लुकाव जोगी जा कोई ना, असां झाड़ियां दे विच बाह के ते वक्त गुजारे तो बारिश दी मोरी में है पे बनीरी बारिश आवन पाई। मुतासरीन का मजीद कहना था कि वो अहले खाना को बारिश और ठंड से बचाने के लिए दरख्तों के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हैं। शुजाबाद में सैलाबी पानी से घरों और खेतों के अलावा राब्ता सड़कों भी मुतासिर। रास्ते बहाल होने से मुतासरीन को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। मकीनों ने हुकूमत से राब्ता सड़कों की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। शुजाबाद में दरियाए चिनाब के सैलाबी रेलों ने शहरी अमला के साथ सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। सैलाबी पानी से 27 मौजाजात की तमाम राब्ता सड़कें टूट गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि खानपुर, काजियां, ताहिरपुर, सोमन, माड़े, धोंदों, बगड़े, चौंतिया शरीफ, अमानुल्लाह वाला, जलालपुर, काकी समेत दीगर इलाकों की सड़कें कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल टूट गई हैं। हुकूमत राब्ता सड़कों की फौरी तमीर कराए। आपकी बेरहम मौजों ने किसी चीज को नहीं बख्शा। शहरी जहां अपने मकानात और खेतों का शिकवा करते हैं, वहीं आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मुसव्वर अंसारी, रोही न्यूज, शुजाबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज की मज़ीद 10 इस्लाम में स्कूल मिल प्रोग्राम की मंजूरी। भक्कर, मियांवाली, डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। स्कूल मिल प्रोग्राम में रहीमयार खान, लोधरा और विहाड़ी शामिल। पहली ता 5वीं जमात के बच्चों को मुफ्त मील दिया जाएगा। पंजाब में घरेलू मुलाजमीन के लिए नए कवायद ज़वाबित की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन के लिए नई तजावीज़ कानून में शामिल कर ली। घरेलू मुलाजमीन के लिए फॉर्म ए पर बाकायदा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार। घरेलू मुलाजमीन के लिए साफ, महफूज और बाइज्जत काम की जगह फ्राहम करना लाजिम। आजिर पर पीने के साफ पानी, आराम की जगह और मुनासिब खाने की फ्राहमी की जिम्मेदारी। हामिला घरेलू खवातीन के लिए हल्के काम और तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी इंतजामात करना लाजिम। आजिर किसी भी इजाफी काम के लिए मुलाजिम की तहरीरी रजामंदी हासिल करेगा। ओवर टाइम की हद हफ्ते में 8 घंटे मुकर्रर, 2 गुनी इजरत देना होगी। घरेलू मुलाजमीन के लिए सालाना रुखसत का बाकायदा रिकॉर्ड फॉर्म बी भी रखा जाएगा। ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून मुलाजमा को फॉर्म डी के जरिए नोटिस देना होगा। हादसात या अमवात की सूरत में फॉर्म एफ और फॉर्म जी के जरिए रिपोर्ट देना लाजिम होगा। अहमदपुर शर्किया में शौकत अली घल्लू पाकिस्तान कराटे टीम के कोच मुकर्रर। शौकत अली घल्लू को कोच का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया के मारलोज कराटे क्लब से है। शहरियों का कहना है कि शौकत अली घल्लू की बहैसियत कोच तकर्री अहमदपुर शर्किया के लिए बड़ा एजाज है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खादम हुसैन सोमरू से।
आज अहमदपुर शर्किया में खुशी का समा है और अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक रखने वाले कराटे के इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद शौकत अली घल्लू, जिनको पाकिस्तान कराटे टीम का कोच मुकर्रर किया गया है, वो हमारे साथ हैं। इस वक्त उनके एजाज में एक तकरीब जारी है, उन्हीं से बात करेंगे। जी शौकत साहब, इस वक्त जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने आपको कराटे टीम का कोच मुकर्रर किया गया, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरे लिए और अहमदपुर शर्किया के लिए और क्लब के लिए और ख़ासतौर पर मेरे टीचर सारी साहब के लिए एक खुशी का मौका है, क्योंकि इस्लामिक गेम दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे सऊदी अरब में आ रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इस्लामिक गेम, बड़ा टूर्नामेंट, और ये बड़ा ऑनर है कि पाकिस्तान के जो कोचिंग जो फ़राइज़ इंजाम देंगे वो अहमदपुर शर्किया के क्लब से और सारी साहब गुजर साहब के स्टूडेंट जो है वो करेंगे। और मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का सफेद मोहम्मद जहांगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और पाकिस्तान कराटे टीम का कोच लगाया मुझे। जी, हमारे साथ शौकत घल्लू साहब के उस्ताद हैं मोहम्मद इसहाक गुजर, उनसे भी जानेंगे। जी जनाब, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी का मौका है, और आप क्या कहेंगे? ये हमारे अहमदपुर शर्किया के लिए, बल्कि जनूबी पंजाब के लिए जो है ना, बहुत खुशी की बात है। ये शौकत घल्लू पहले भी इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा और अहमदपुर के लिए एजाज जीतता रहा, और इस दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान टीम का कोच बन के ये अहमदपुर शर्किया के हमारे क्लब का और हमारे सबके दिल जीत लिए हैं। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, वहाँ पे अल्लाह ताला इनकी टीम को कोई मेडल निकले वहाँ पे, और इसी तरह हम खुशी मनाएं जिस तरह अब आज मना रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि आपने सुना, ये अहमदपुर शर्किया के लिए नहीं, जनूबी पंजाब के लिए भी एजाज की बात है कि पहली बार जो है वो इंटरनेशनल सतह पर कराटे टीम का जो कोच लिया गया है वो जनूबी पंजाब से, और उसका ताल्लुक है